Hello students, welcome to Mathematics of Class 4, Chapter 4, Tick, Tick, Tick. This is the part 2 of this chapter. Okay, so students, in the part 1, you have learned about the different timings in a clock. Okay, how to read the clock, how to write the time in the clocks, how learned it. Now let's see more about it. Okay, so students, read and write the time. So you already seen that. What time is it in the clock, students? That is a 3 o'clock, right? So whenever you have to see the time in the clock, which hand you have to see, students? It's an hour hand. Okay, that means it's short hand. The short hand is called the hour hand and the long hand is called the minute hand. तो जब भी आपको टाइम देखना है, you have to see the short hand. So because short hand shows the hour, so 3 o'clock. And the minute hand exit point to 12, it's a o'clock time, right? Here, what time is it? That is a 2 o'clock. Immediately, whenever your parents will say or anyone say you what the time in the clock, so you will see the shorthand, okay, and then you see the time. Now let's see another one. What time is it, students? Both the hands on point to 12, so that is the 12 o'clock. Now here, what time is it, students? So 10 is a shorthand, point to 10 shorthand, so 10. And here the long hand means minute hand is on 3. So यहाँ पे आपको पता है कि 12 से स्टार्ट करना है. 12 to 1 आएगा तो how many minutes? 5. Then 2 पे आएगा तो 10. Which hand will move like this way? So 5 10 काउंट करना है minute hand. अगर minute hand 12 से 1 पे आता है तो 5 minutes. Then 10 minutes. Then 15 minutes. ओके, सो दैट मीन्स 10 15 हुआ है. सो 15 के लिए मैंने आपको बताया था विच वर्ड हैज़ टू बी यूज्ड? क्वार्टर पास्ट. एंड आवर कितना हुआ है? 10. सो वी कैन से क्वार्टर पास्ट 10. ऑन अनदर वे वी कैन से 10 15 ऑल्सो, राइट? सो व्हेन द मिनट हैंड्स विल मूव वन नंबर टू अनदर नंबर, 5 मिनट विल बी पास्ट. ओके, 5 मिनट्स होता जाएगा. एंड व्हेन द आवर हैंड मूव वन नंबर टू नेक्स्ट नंबर, 1 hour विल बी completed, right? So you have to see the hand and then you have to see the time. Okay, let's see another one. Now what time is it in the clock, students? We already discussed in the previous video. So here the hour hand is not exact point to 8 and 9. So what I said to you, मैंने क्या बोला था आपको? Which hand you have to which number you have to consider is a previous number. आपको अगर जब hand middle में है तो आपको 8 और 9 में से जो प्रीवियस नंबर है यानी बिफोर नंबर है उसको कंसिडर करना है, यानी वी कंसिडर द 8. ओके, सो 8 एंड मिनट हैंड इज एग्जैक्ट पॉइंट टू 9. दैट मीन्स हाउ मेनी मिनट पास्ट? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. सो हर एक पे 5 मिनट्स. तो कितनी मिनट्स हो जाएगी? 45 मिनट्स, राइट? सो वी कैन राइट 8 hours and 45 minutes. तो अगर 45 मिनट्स है तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, स्टूडेंट्स? आई ऑलरेडी टोल्ड यू 45 मिनट्स के लिए एक वर्ड है क्वार्टर टू, राइट? क्वार्टर टू. और जब हम क्वार्टर टू लगाते हैं तो वी कांट राइट 8. क्वार्टर टू लगाए तो हमें क्या लगना पड़ेगा? नेक्स्ट आवर इज़ 9. क्वार्टर टू 9 का मतलब होता है 9 बजने में 15 मिनट्स लेफ्ट है, राइट स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है? क्लियर? नाउ लेट्स सी हियर. सो व्हाट टाइम इज इट? Minute hand is on the hour hand is middle of this two number, not exact point to 12, not a 1. सो कौन सा आवर कंसिडर करना है? 12. प्रीवियस नंबर को कंसिडर करना है. ओके, 12 को कंसिडर करेंगे. और मिनट हैंड कहाँ पे है? 9 मीन्स 45 मिनट्स में. दैट मीन्स द टाइम इज़ 12 hours 45 minutes. अगर दूसरे तरीके से लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 45 मिनट्स है तो क्वार्टर टू. और हमने यहाँ पे बोला 12 hour 45 minutes, बट हम क्वार्टर टू लिखेंगे तो 12 के बाद कौन सा आवर आएगा? 1. सो हम लिखेंगे क्वार्टर टू 1. यानी क्वार्टर टू 1 का मतलब होता है 12:45. दैट मीन्स 1 hour में 1 hour में 15 मिनट्स बाकी है. क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक क्लियर हो गया आपको हाउ टू रीड द टाइम, हाउ टू राइट द टाइम? ओके, नाउ लेट्स से अनदर एग्जाम्पल. सी हियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आवर हैंड कहाँ पे है? 1 और 2 के मिडल में, राइट? तो कौन सा आवर कंसिडर करेंगे स्टूडेंट्स? हम 1 को, प्रीवियस नंबर को कंसिडर करना है. सो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 hour. ओके, देन वी मेक द 2 dots. अब यहाँ पे आवर हैंड कहाँ पे है? मिनट हैंड कहाँ पे है? 6 पे, राइट?
सो 6 पे है तो हाउ मेनी मिनट पास 5 10 15 20 25 एंड 30 यानी 1 hour and 30 minutes। तो 30 मिनट्स के लिए हमारे पास कौन सा वर्ड लिखना है हमें हाफ पास्ट। What word you will write हाफ पास्ट और आवर कौन सा है 1 तो हाफ पास्ट 1। So we write the time in two ways 1:30 also and then half past 1। 30 मिनट्स की जब बात हो दैट इज़ कॉल्ड द हाफ पास्ट और आवर जो है वही लिखना है। ठीक है, आपको खाली जब 45 मिनट्स हो तभी आपको यहाँ पे जब वर्ड में लिखते हो तो आपको आवर का खाली ध्यान रखना है, अदरवाइज क्वार्टर पास और हाफ पास में सेम ही नंबर लिखना है। ठीक है, हाफ पास का मतलब होता है 1:30 हो चुके हैं, राइट। सी हियर what the time here, where is the hour hand, this one, it is not 0.26, it's not 0.27, so which hour you will consider students 6। ओके 6 और 7 में से कौन सा कंसिडर करेंगे 6 को, राइट। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे 6 and you 2 dots। where is the minute hand is on 5, so 5 10 15 20 and 25, 6 hours 25 minutes, right students। 6 hour 25 minutes। अब उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 25 है हमारे पास, 30 के लिए वर्ड है, 15 के लिए 40, 25 के लिए हम क्या लिखेंगे, सिंपल वर्ड हैज़ टू राइट 25 MINUTES 25 मिनट पास्ट 6 यानी 6:25 पास्ट हो चुके हैं। पास मीन्स एक्शन कंप्लीट हो चुकी है, 25 मिनट्स कंप्लीट हो चुकी है। तो व्हाट वाज टू राइट 25 मिनट पास्ट 6। क्लियर स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पे 4 पे होता है तो क्या लिखते हैं 20 मिनट पास्ट 6। अगर 2 पे होता है तो क्या लिखते हैं 10 मिनट पास्ट 6। क्लियर। आपको खाली 3 पे हो तो क्वार्टर पास लिखना है, 6 पे हो तो हाफ पास लिखना है और 9 पे हो तो क्वार्टर 2 लिखना है। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स। बाकी के लिए आपके जितने मिनट से मिनट पास करके वो ओवर लिख दो, दैट विल बी राइट। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नाउ स्टूडेंट्स व्हाट टाइम इज इट, तो यहाँ पे आपको देखना है अवर एंड कहाँ पे है 8 के ऊपर, नॉट एग्जैक्ट 0.289 पर कंसिडर हम क्या करेंगे 8 इज नियरेस्ट टू 8। ओके, हमें यहाँ पे लिखना है 8। ओके, वेयर इज द मिनट एंड 2, सो here students 5 and 10 minutes, 8 hours and 10 minutes. We can write this way also. Okay, now how can you write it in another way, 10 minutes MINUTS 10 minutes past 8। क्या लिखेंगे हम 10 मिनट पास्ट 8 यानी 8:10 हो चुकी है। राइट स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है, इजी है ना। अगर आपको सिंपल कोई भी नंबर है तो आप जस्ट लिखो दैट मिनट हैज़ टू राइट, देन राइट 10 मिनट पास करके जो आवर है वो लिख दो। क्लियर, समझ में आ रहा है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन स्टूडेंट, व्हाट टाइम इज इट हियर, वेयर इज द आवर हैंड, इज द मिडल ऑफ 7 and 8, सो विच आवर हैज़ टू बी कंसिडर 7। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 2 dots। वेयर इज द मिनट हैंड इज ऑन 5, नो नॉट इज ऑन 5 10 15 20 21 22 23 एंड 24 यानी 7:24 हुआ है। राइट स्टूडेंट्स, नॉट एग्जैक्टली 25, अभी 5 पे नहीं आया है। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 24 मिनट्स पास्ट 7। ओके, सो हम लिखेंगे 24 मिनट पास्ट 7। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स हाउ टू राइट द टाइम, इट्स वेरी इजी, नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, राइट। सो आपको जब भी हम मिनट हैंड हो तो आपको वन नंबर से 2 नंबर पे मूव करो, 5 मिनट्स काउंट करनी है। इफ़ द हैंड इज़ द मिडल तो यू हैव टू सी दिस 4 to 5 में कितने मिनट्स होती है 5 मिनट्स, तो उसके अकॉर्डिंग आपको काउंट करना है। ठीक है, और जब 1 आवर से 2 आवर पे आवर हैंड जब 1 नंबर से 2 पे मूव करता है तो 1 आवर कंप्लीट होता है। ओके, तो आपको हैंड्स देके काउंटिंग करनी है, दिस इज एन मिनट हैंड और दिस इज एन आवर हैंड, किसकी हम काउंटिंग कर रहे हैं वो ध्यान में रखना है। ठीक है, सो स्टूडेंट लेट्स सी, नाउ यू ओपन द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 36, देयर इज गिवन सम ऑफ द एक्सरसाइज that we will solve it. See here the 3 friends name is written Chiku, Bittu and Pinky.
So here the clock is given and these three friends have written the different time. Now who is right, which is given the correct time regarding this clock? So students, first whenever you see the clock, which hand you have to see? That is the short hand, means hour hand, and long hand, that is called the minute hand. So where is the short hand? It's exact point to 3, that means hour is 3. And when the minute hand is exact point to 12, that is the o'clock time, that we can say 3 o'clock. Okay, so which is the correct time? Pinky time is correct, so we have to put a tick on Pinky's time, right? But these two have given the wrong time, 12 hour and 3 minutes, and this B2 has written 12 hour and 15 minutes. Both times are wrong because मिनट हैंड 12 पे है तो हमें उसको 12 आवर नहीं बोल सकते. मिनट हैंड शोज द मिनट एंड आवर हैंड इज एक्सेक्ट पॉइंट टू 3, सो दैट शोज 3 hours. ओके, समझ में आया? लेट्स सी द अनदर वन. नाउ चीकू से 7 hour 25 minutes, B2 से 5 hour 7 minutes, and Pinky से 5 hour 35 minutes. हु इज करेक्ट हियर? सो ये सब देखने से पहले आपको क्या देखना है? वेर इज द आवर हैंड? आवर हैंड इज मिडल ऑफ 5 and 6, यानी शॉर्ट हैंड देखना है. सो 5 कंसिडर होगा, मैंने आपको बताया था वैसे, राइट? एंड मिनट हैंड इज पॉइंट टू 7, सो नॉट राइट द 7 हियर. 7 नंबर शोज द 7 is just a number, but you have to count the minute, right? So 5, 10, 15, 20, 25, 30 and 35 minutes. तो आपको जब भी मिनट है ये नंबर को पॉइंट करता हो, आपको 5 मिनट्स के अकॉर्डिंग काउंट करना है. स्टार्ट फ्रॉम द 12 to 1 5 minutes and 10 minutes like that. Okay, so which is the correct time? 5 hours and 35 minutes, not a 5 hour and 7 minutes, right? Is not a minute. Clear? This number shows the hour. Clear? So what our time? 5 hour 35 minutes. Now see the next one, students. So here 3 hour 35 minutes written, 7 hour 3 minutes, 7 hour 15 minutes. So who is correct here? So our end is exact point to 7, not exact point but nearest to 7 and 8. So 7 को consider करना है, previous number को consider करना है, ठीक है. Now minute hand is on point 3, so 3 नहीं आएगा, this is wrong, right? अगर 3 पे है तो कैसे काउंट करना है? 5, 10 and 15 minutes, यानी टाइम होगा 7 hours and 15 minutes. आपको भी ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक है. पहले आपको आवर फाइंड करना है विथ द हेल्प ऑफ शॉर्ट हैंड, राइट? 7 आवर मिल गया एंड देन मिनट फाइंड करने के लिए अगर वो 3 पे है तो काउंट कर लो 1, 2, 5, 10, 15 करके, राइट? अगर आपको डायरेक्ट 3 नंबर नहीं लिख देना है, क्योंकि यहाँ के क्लॉक के फेस के ऊपर जो नंबर है वो आवर रिप्रेजेंट करते हैं और मिनट के लिए हमें काउंटिंग करनी पड़ेगी. 1 number that means 5 minutes, 2 number means 10 minutes, 3 number 15 minutes, like that you have to count. That means 1 hour 60 minutes complete हो जाएगा, ठीक है. देखो इन्होंने मिस्टेक किया है ना, 3 hour 35 minutes, उन्होंने मिनट एंड को आवर एंड समझ लिया है. ओके, सो दैट मिस्टेक विल नॉट बी हैपन. लेट्स सी द नेक्स्ट पेज. हियर स्टूडेंट्स, शो द फॉलोइंग टाइम्स इन द क्लॉक. यहाँ पे आपको जो टाइमिंग दिया है उसको क्लॉक में बताना है, ठीक है. सो व्हाट द टाइम इज हियर? 3:10 मीन्स व्हाट? डॉट के पहले वाला नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? आवर, एंड आफ्टर डॉट नंबर रिप्रेजेंट द मिनट्स. दैट मीन्स 3 hour and 10 minutes, राइट स्टूडेंट्स? सो आवर हैंड है 3 hours है, मीन्स हम 3 के सामने कौन सा हैंड ड्रॉ करेंगे? शॉर्ट हैंड. तो स्टूडेंट्स हियर द स्पेस इज टू मच स्मॉल, सो ड्रॉ इट प्रॉपरली, राइट? सो सेंटर में से 3 hours and 10 minutes. 10 minutes मीन्स 1 पे आएगा तो 5, 2 पे आएगा तो 10 minutes. नाउ मिनट हम ड्रॉ करेंगे एग्जैक्ट पॉइंट टू 2, राइट स्टूडेंट्स? समझ में आया? यानी आपको जो 3 है वो स्मॉल हैंड ड्रॉ करना है और 2 के सामने लॉन्गर हैंड ड्रॉ करना है, ठीक है. अगर आपने दोनों हैंड इक्वल ड्रॉ कर दिए तो वी कांट आइडेंटिफाई विच इज आवर हैंड एंड मिनट हैंड. सो आपको ध्यान रखना है आवर वाला जो भी हैंड है उसको मिनट हैंड से शॉर्ट ड्रॉ करना है, ठीक है स्टूडेंट? समझ में आ रहा है? नाउ नेक्स्ट 6 hour 40 minutes. तो 6 hours है तो हम मिनट पहले कौन सा हैंड ड्रॉ करेंगे? शॉर्ट हैंड ड्रॉ करेंगे नियरेस्ट टू 6. 40 minutes है यानी हम एक्सैक्ट 6 के पास नहीं ड्रॉ कर सकते. 60 के बाद कौन सा आवर आएगा? 7. यानी हम जो मिनट है सॉरी आवर हैंड है वो 6 और 7 के मिडल में ड्रॉ करेंगे, ठीक है. और एग्जैक्ट 1 to 6 कब ड्रॉ करेंगे? जब 6 o'clock हुआ होगा, 12 पे मिनट हैंड होगा, तब हम एग्जैक्ट 6 के सामने ड्रॉ करेंगे. अदरवाइज हम थोड़ा नेक्स्ट नंबर के नियरेस्ट और नेक्स्ट नंबर के मिडल में यानी 6 और 7 के मिडल में ड्रॉ करेंगे एज पर द मिनट. नाउ 40 minutes है यानी अब मैं आपको बताया था 40 minutes यानी 1 पे आएगा तो 5, 10, 15,
25, 30, आपको याद रखना है 6 पे 30 मिनट्स होता है, 10, 35 एंड 40, यानी हम कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, एग्जैक्ट पॉइंट टू 8, यानी 6 hours and 40 minutes। समझ में आ रहा है? नाउ लेट्स सी हियर 4 hours 45 minutes। What is given here? 4 hours 45 minutes. Here a very small clock is given, so be careful while drawing the hands। 4 hours and 45 minutes, आप देख सकते हो 45 minutes मीन्स हम 4 आवर हैंड कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे देखो नंबर भी कैसे दिया है 3, देन 2 लाइन दिए, देन 6, दैट मीन्स 1 लाइन रिप्रेजेंट 4 एंड नेक्स्ट लाइन रिप्रेजेंट 5। हमें 4 hours 45 मिनट दिखाना है, तो हम आवर एग्जैक्ट 4 पे आवर हैंड ड्रॉ नहीं कर सकते, हम 4 और 5 के बीच में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया जैसे आपको एग्जैक्ट कब ड्रॉ करना है, जब एग्जैक्ट ओ क्लॉक हो यानी 12 पे मिनट हैंड हो तब। ठीक है, सो 4 hours 45 minutes मीन्स 9 पे आएगा अब मिनट हैंड। ठीक है, मिनट हैंड लॉन्ग ड्रॉ करना है और आवर हैंड शॉर्ट ड्रॉ करना है, दोनों सेम ड्रॉ नहीं करने हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, दिस ट्री हैज़ टू डू बाय ओट। ओके, ये जो ट्री है वो आपको अपने आप से करना है, ये तीन के हैंड्स आपको अपने आप ड्रॉ करने हैं। ओके, सो आई विल शो द आंसर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो ट्राई टू डू बाय ओट, आपको ईजी है, 2 hours है मीन्स 2 पे ड्रॉ करना है 20 minutes। पर मैंने जैसे बोला कि अगर 20 minutes से यहाँ पे 0 है तो आप एग्जैक्ट 2 पे ड्रॉ करो, पर जब यहाँ पे मिनट्स दिखाई है पीछे तो आप नेक्स्ट आवर के बीच में यानी 2 के बाद 3 आएगा, सो आवर हैंड 2 और 3 के मिडल में जैसा ड्रॉ करना है। ठीक है, एंड मिनट हैंड आपको यहाँ से काउंट करके ड्रॉ करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? एग्जैक्ट ओ क्लॉक हो तो ही मिनट आवर हैंड एग्जैक्ट नंबर के सामने आएगा, अदरवाइज इट विल बी कम्स नेक्स्ट नंबर के मिडल में और अप एंड डाउन पोजिशन में आएगा एज पर द मिनट्स। सो यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क एट होम। नाउ लेट्स सी दिस नेक्स्ट वन। फाइंड आउट हाउ लॉन्ग विल इट टेक द मिनट्स हैंड्स टू मूव फ्रॉम। अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, 2 क्लॉक दिया है, एक ही क्लॉक है पर उसमें 2 टाइमिंग दिए हैं। तो अगर आप देखते हो कि थोड़ा 3 यहाँ पे कौन सा आवर है, 3 और 4 के बीच में है तो हम 3 को कंसिडर करेंगे, और मिनट हैंड कहाँ पे है 7 पे, दैट मीन्स 35 minutes, राइट। अब आपको पता चल जाना चाहिए कि 7 पे होता है तो 35 minutes होती है, 8 पे 40 minutes, 9 पे 45 minutes, दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। सो 3 hours 35 minutes है यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे 3 hours 35 minutes। अब थोड़ी देर के बाद देखते हैं तो हमारा टाइमिंग हो जाता है, देखो यहाँ पे भी 3 और 4 के मिडल में है, 4 o'clock नहीं हुआ है। ठीक है, जब 12 पे आएगा तो 4 o'clock होगा, और 3 और 4 के बीच में है तो 3 hours ही है। और मिनट्स कितनी हो गई है, यहाँ पे आप देख सकते हो कितने मिनट्स है, 10 पे हो तो कितनी मिनट्स होती है 15 minutes। तो आपको 35 से 15 minutes में कितनी मिनट्स कंप्लीट हुई है, 35 थी पहले, तो अगर उसके बाद जाएगा तो 5, 10 और 15, 35 से 50 तक जाने में कितनी मिनट्स लगती है, 15 मिनट्स लगती है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो वो आपको यहाँ पे ब्लैंक में लिखना है 15 मिनट्स। तो जब भी आप घड़ी में टाइम देखते हो कि मम्मी आप मुझे 10 मिनट्स के बाद बुलाना, तो आप देखते हो ना कि अगर यहाँ पे ये टाइम है और 10 मिनट्स के बाद कौन सा टाइम होगा, वैसे ही यहाँ पे 2 क्लॉक दिए, तो आपको उसको कितना टाइम लेती है आवर एंड सॉरी मिनट एंड यहाँ से यहाँ पे मूव करने के लिए, वो आपको लिखना है। अब ये एग्जांपल देखते हैं, देखो यहाँ पे 3 और 4 के मिडल में है तो हमें 3 को ही कंसिडर करना है, राइट। आपको याद रखना है जब भी मिनट हैंड जब भी आवर हैंड दोनों नंबर के मिडल में हो तो आपको प्रीवियस वाला नंबर कंसिडर करना है, यानी 3 hours 40 minutes हुआ है। अब थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो कितना बच गया है, देखो अभी यहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट टू 4 है, और जैसे 12 पे आएगा आवर हैंड एग्जैक्ट नंबर के सामने आ जाएगा, 4 o'clock हुआ है। तो कितनी मिनट पास हो चुकी है, अब यहाँ से काउंट करें, देखो 5, 10, 15 और 20, यानी 3:40 से 4 o'clock होने में कितनी मिनट हो जाती है, 20 minutes। आपको यहाँ पे लिखना है 20 minutes के साथ पूरा। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे देखिएगा, देखो 6 hours and 5 minutes हुआ है, राइट, और यहाँ पे हुआ है 6 hours and 15 minutes। 3 पे है तो 15 होगा, तो 5 से 15 पे जाने में कितनी मिनट्स होती है, 5 and 10 minutes। तो आपको यहाँ पे लिखना है 10 minutes। जब भी आपको कहीं जाना हो तो आप टाइम नोटिस करते हैं ना, जिस ना अभी तो 6:05 हुआ है, मुझे 6:15 को जाना है, तो कितनी मिनट्स लेफ्ट है, 15 minutes, सॉरी कितनी मिनट लेफ्ट है, 10 minutes। समझ में आ रहा है? सो you have to identify कि how many minutes passed। now see here 7 hours 10 minutes, right। अब यहाँ पे दिखाया है, देखो यहाँ पे 8 नहीं बचा है, 8 कब बचेगा, जब 12 पे जाएगा अपने टर्न, यानी ये 7 ही कंसिडर होगा, 7:45 हुआ है,
सो 7:10 से 7:45 तक कितने मिनट्स होती है? लेट्स काउंट इट. 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35 मिनट्स होती है. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 35 मिनट्स. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? So this has to do by own. Try to count and do by own and write this all this exercise in your textbook also. Okay students? Okay, so in the next video we will see you the next exercise. So I hope you understand which I explain you. Thank you.